Science channel. Today we will discuss a new chapter of NCERT Science class 10th, the chapter number 12, that is electricity. In this lesson we will discuss about some of the following points. These are: what constitutes an electricity, how does electricity flow in a circuit, what are the factors that control or regulate the current through an electric circuit. We shall also discuss the heating effects of electric current and its applications. And beside this, we will discuss the following contents also: what is charge, properties of charge, methods of charging, what is electricity, electric current, electric field, electric potential and potential difference, Ohm's law, resistance, electric circuit and its components, current and voltage measurement, combination of resistance, and series versus parallel combination of circuits. So let's start the video. Let's discuss the chapter now. It's here. First of all, let's discuss what is a charge. In actually, charge है क्या? So, charge is the inherent property of matter that feels force of attraction or repulsion due to excess or deficiency of electrons. Actually में charge is a property of matter, सभी matter में होती है, that feels force of attraction or repulsion due to some excess of electrons or maybe due to deficiency of electrons. So charge is of two types. First one is positive charges, then the second one is negative charge. Positive charge is due to electron deficiency and the negative charge is due to excess of electrons. As we all know, electron carries negative charges. If number of electrons are more, so the negative charge will be more. If number of electrons are less than the protons, then the charge will be carried by protons and that will be called as positive charge. So its standard international unit is Coulomb, that is denoted by C. It is detected and measured using a device that is called electroscope. So I hope things are very clear. Next, we will discuss properties of charge. So properties of charge, what are these? The total charge of the universe is conserved, or we can say it's a constant charge. Like charges attract each other and unlike charges repel each other. Means the positive charge attract the negative charge and the negative charge attract the positive charge. In the same way, the positive charge repels the positive charge and the negative charge repels the negative charge. Charges are additive in nature. Charges की जो nature है वो additive है, means add होने वाली nature है. Charges are always quantized, means इनको quantum में हम express करते हैं. So 1Q is equal to N into E, number of electrons. So Q is the charge, N is number of electrons, and E is the charge on one electron, that is equal to 1.67 into 10 power minus 19 Coulomb. So charge is relatively a constant. अगर हम बात करें, चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है मोस्टली. अगर रिलेटिवली हम बात करें, कांस्टेंट होता है. और किसी के ऊपर चार्ज कैसे होगा, कितना चार्ज होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई किया जाता है. सो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. नाउ मेथड्स ऑफ चार्जिंग. What are the methods by which we can charge something? So method of charging, first one is charging by conduction.
When an uncharged body is brought into contact or in touch with an charged body, then the charge or electrons are transferred from the charged body to the uncharged body. जब क्या होगा, जब एक कोई अनचार्ज्ड बॉडी किसी चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आई जाएगी, सो चार्ज बॉडी से जो चार्ज हैं वो अनचार्ज्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं. दिस चार्ज इज द अनचार्ज्ड बॉडी. इससे क्या होगा, जो अनचार्ज्ड बॉडी वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है. सो चार्जिंग देखिए यहाँ पर, अगर हम डायग्राम के थ्रू उसको देखना चाहें तो इस तरह से हम एक्सप्रेस इसको कर सकते हैं कि चार्ज अगर किसी पार्टिकल के पास, किसी बॉडी के पास अगर कोई चार्ज्ड बॉडी लेकर आई जाएगी तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है, जहां ज्यादा चार्ज है वहां से कम चार्ज की ओर हो जाएगा, और जो बॉडी पहले से अनचार्ज थी वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी. इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग में सेकंड नंबर पे आता है इंडक्शन. इन द इंडक्शन प्रोसेस a charged object is brought near but not touched to a neutral conducting object. इसमें क्या होगा, इससे पहले हमने देखा कि कांटेक्ट में, टच में लेकर आ रहे हैं, किसमें, कंडक्शन मेथड में. चार्जिंग का जो कंडक्शन मेथड है इसमें जो चार्ज्ड बॉडी है उसे अनचार्ज्ड बॉडी के बिल्कुल टच में लेकर आया जाता है. बट हियर इन द इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, जब चार्ज्ड बॉडी है उसे अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाकर उसके एक एरिया के क्लोज लेकर आया जाता है. The presence of a charged object near a neutral conductor will polarize the charge within the conductor. So the presence जो है, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रेजेंस है वही जो अनचार्ज बॉडी है उसमें कंडक्टर को क्या कर देगी, पोलराइज्ड कर देगी, और उसकी वजह से वहां पे चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब सबसे बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये लेसन है और हम सबसे पहले यही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में है क्या. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी चेंज्ड इजीली टू मेनी अदर फॉर्म्स. इलेक्ट्रिसिटी ऐसी एनर्जी है जो दूसरे फॉर्म्स में इजीली चेंज की जा सकती है. तो आज का जो जमाना, इसे अगर हम कहें इलेक्ट्रिसिटी एरा, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट. और इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. सो द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ड्यू टू ए क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट it is the rate of flow of electric charge or electrons through a conductor, like I is equal to Q upon T, and that is equal to N into E divided by T, where I stands for current. देखो करंट को अगर हम I से डिनोट करें तो करंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा अभी तक जो हम बात कर रहे थे चार्ज, जो हम चार्ज की बात कर रहे थे उस चार्ज को टाइम से डिवाइड करें कि कितने टाइम तक चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हुआ, तो उसे हम किसके रूप में लिखेंगे, करंट के रूप में शो करेंगे. सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द Q डिवाइडेड बाय T. और Q को हमने पहले भी देखा था, जो चार्ज है उसको किस तरह से देखा हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, और वी कैन से मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है. इट्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज कूलम पर सेकंड,
और वी कैन से एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको बोलते हैं कूलाम पर सेकंड, ठीक है, कूलाम पर सेकंड। और इसका एक दूसरा नाम दिया गया है एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एमीटर। अमीटर के थ्रू इसको क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। इट्स डायरेक्शन इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइनस से प्लस की ओर मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज से किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के कंपेरिजन में लिया जाता है। इट फ्लोज एज ए रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये क्यों फ्लो होता है, जब कोई भी कंडक्टर है उसके एंड में, कंडक्टर के दोनों एंड हैं उनमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो शुरू हो जाएगा, और अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट होते हुए भी उसका फ्लो वहां पर नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड very important things today. Some more are left, पर ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम बाकी जो बातें हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको देखें। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कैन अप्रोच टू मी। थैंक्स।